हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है पॉलिटिकल साइंस। आज करेंगे हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी जो है राजनीतिक विज्ञान के जो है क्षेत्र और अर्थ के विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, जिनका एनसीईआरटी बुक हो, चाहे यूपी और बिहार बोर्ड के बच्चे हो। ये कई मानने में कई क्लास के बच्चों को इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको पता है कि इसमें जो है आपको मिलेगा हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो ये आपके लिए डबल डोज के रूप में रहेगा। इसमें जो है हम सभी चीज़ के विषय में जो है विस्तार पूर्वक जानेंगे, चाहे इसका स्कोप हो चाहे इसका कार्य क्षेत्र हो। लेकिन आपको पता है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is distinction between the political science and politics. There is the most important here. There is a political science and politics. The term of political science and politics are often used interchangeable. There is a interchangeable. However, there are distinctions between the two needs to be understood. Some scholars define politics to be the science and the art of government. Here, some scholars have defined is politics to be their science and art of government. But this is only part of the total explanations of subject of politics. There is a political science. The nowadays their term politics use mean the problems of citizen interacting with the instrument of political power in one from other. And sometimes politics was on still used as a techniques of compromise or the method to be a capture power and return it. There is a two means here, political science and politics. This according to the many political scientists, the study of political science compares theory, the state concept of the surveillance power from a function on government and making an questions of law and the election, political parties, right and duty of citizens, policy function and study of the welfare activity of state and government. There is the most important here. There is another aspect of the political that need to be a impulsives of politicals may a time to the impact of political of is a practically of politicals. And here practicing of politics is a different from studying in it. The is a political politics include actually formation of the government, the workings of government and administration law and the regulations. It is also include international politics, including matters such as a peace and the war, international trade and economical order. The protection of the right also. All this is also to compare the subject matter of study of politics. You understand? There is here include international political and include a matter such as a peace and war, international trade, economic order, and protection of the right. And all this is a compared subject to matter study of politics. Well, there is a knowledge of political science as a discipline is acquired through the study the skill of political politics is required through the politics of manipulations and craftiness or by the exporting caste and religion lawless as a religion sentiment. Practically, politics are often described as the dirty game and the corruption process in the common people as a mind. Here is the most important things here.
The practically politics is often described as a dirty game and corruption process. In the understanding that all people has a mind, but we find that there are hardly any human grouping and societies which are free from politics as a hardly any individual who does not be now the implication of the game of politics. Practically, politics also has a money positive acceptors. In this era of the welfare state, many of positive programs such as removal of untouchability, land reforms, release of the bonded levers, and the provision of the trafficking of human beings as a bigger is a forced labor, and introduction of their minimum wages employment is a generation and programs. Empowerment of the other backward classes are all example of positive aspect of practically politics. The politics refer to the process of actually happening in the society and institution, which a political science refer to the understand in a systematic manner. यदि यहाँ पर हम बात करें राजनीतिक विज्ञान तथा राजनीतिक में अंतर, देखिए राजनीतिक विज्ञान और केवल राजनीति, तो ये दोनों वर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें राजनीतिक विज्ञान तथा राजनीतिक, प्राय एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग हो सकती हैं और इन दोनों शब्दों के बीच अंतर समझना जरूरी भी है। कुछ विद्वानों ने राजनीति को विज्ञान तथा सरकार की कला भी कहा है, जबकि यह राजनीति विज्ञान की व्याख्या का केवल एक सिर्फ हिस्सा मात्र ही माना जा सकता है। आजकल राजनीतिक शब्द का प्रयोग एक अथवा अनेक रूपों में जनता की समस्याओं को हल करने वाले तंत्र के रूप में होने लगा है। यानी जनता की जितनी भी समस्याएं हैं राजनीतिक नेता ही इसको सलूशन करेंगे, तो इस बात में राजनीतिक कहा जाता है। किसी भी समय में और आज भी शक्ति पाने तक उसे बनाए रखने की तकनीक को ही राजनीतिक कहा जाता है। यानी राजनीति को देखा जाए तो ये सिर्फ एक सीट के लिए ही संघर्ष होता है। यानी सीट अगर प्राप्त होगा तो उनको पावर प्राप्त होगी, अगर पावर प्राप्त होगा तो वो जनता पर राज करेंगे। तो यही विचारधारा से जो है वो सभी जो है राजनीतिक के में जो है उतरना चाहते हैं और सीट प्राप्त करना चाहते हैं। कहते हैं अगर सीट प्राप्त करने के लिए वो हर संभव कोशिश करते हैं, चाहे इवन जो है लोगों में लड़ाई भी क्यों ना करवाना पड़ जाए, तो वो उसके लिए भी तैयार रहते हैं। तो इसी के लिए इसको जो है पॉलिटिकल कहा जाता है। कहते हैं अनेकों राजनीति वैज्ञानिकों के अनुसार राजनीति विज्ञान का अध्ययन के अंतर्गत राज्य के सिद्धांत, संप्रभुता, शक्ति की अवधारणा, सरकारों का स्वरूप एवं कार्य प्रणाली, कानूनी निर्माण तथा लागू करने की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। यानी देखा जाए तो इसमें हर चीज़ जो है रूल रेगुलेशन सम्मिलित होती है, चाहे वो सिद्धांत हो, संप्रभुता, शक्ति की अवधारणा हो, सरकार का स्वरूप हो या कार्य प्रणाली हो, या कानून का निर्माण हो, लागू करने की प्रक्रिया हो, चुनाव हो, राजनीतिक दल हो, नागरिकों का अधिकार, कर्तव्य, पुलिस की कार्य प्रणाली एवं सरकार की कार्य प्रणाली गतिविधियाँ, सारे कुछ इसमें सम्मिलित होती है। तो सारे के सारे जो होते हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही आता है और ये सारी चीज़ें जो होती है जनता पर लागू होती है, जनता पर ही इसका प्रभाव देखने को सदैव मिलता है। राजनीति का एक दूसरा पहलू ये भी है जिसमें समझने की ज़रूरत है। कई बार राजनीति का अर्थ प्रायोगिक राजनीति से लगाया भी गया है कि राजनीतिक जो है एक तरह का प्रायोगिक है जहाँ पर प्रयोग सदैव होती ही रहती है। राजनीति का प्रयोग राजनीतिक का अध्ययन से भिन्न भी माना गया है। अगर देखा जाए इसका व्यवहारिक राजनीति के अंतर्गत सरकार का इसमें गठन होती है, सरकार की कार्य प्रणाली होती है, प्रशासन होता है, कानून एवं विधायी कार्य सभी ये आते हैं। इसके अलावा राजनीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जिसमें युद्ध एवं शांति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक व्यवसाय तथा मानव अधिकार की रक्षा भी ये सारे इसी के अंतर्गत आता है। जहाँ राजनीति विज्ञान के एक विषय के रूप में जानकारी अध्ययन से प्राप्त होती है, वही व्यवहारिक अगर राजनीतिक का कौशल राजनीति करके या चालाकी या धूर्तता से अथवा जातिवाद, धर्मवाद, निष्ठावाद, धर्मी भावनाओं के जो है शोषण करने से होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि राजनीति का मतलब ही होता है कि ये एक गंदा खेल होता है जहाँ पर जो है बड़े बड़े नेता जो होते हैं आम जनता पर हर संभव राज्य करने की हर एक धूर्त प्रयासों का जो है कोशिश करते हैं, चाहे वो चालाकी हो, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे धार्मिक निष्ठा हो या धार्मिक भावनाओं को साथ शोषण करने की बात हो, वो हर संभव कोशिश करते हैं क्योंकि उनका दायित्व सिर्फ यही होता है सीट प्राप्त करना। कहते हैं एक बार
सीट प्राप्त हो गया तो वो 5 साल तक जो है अपने जीवन जो है सुखमय परिस्थिति में बिता सकते हैं। इसलिए हर कोई राजनीतिक में जो है सीट प्राप्त करने के लिए इवन घर तक भी बेच देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक घर मैं बेच दूंगा, अगर मुझे विजय प्राप्त हो गई तो मैं ना जाने ऐसे 50 घर भी मैं खरीदने के लिए अग्रसर हो सकता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो यही बात सच्चाई भी है, और ये सभी आम आदमी की सोच के में इसको गंदा खेल या भ्रष्ट प्रक्रिया भी कहा जाता है। आम व्यक्ति से अगर पूछोगे तो यही बात वो बताएंगे कि राजनीति एक बहुत ही गंदा होता है, और ये गंदा ही खेल माना गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी का नहीं होता है। कभी वो इस दल में होते हैं तो कभी उस दल में होते हैं। कहते हैं मुसीबत पड़ते ही सब के सब जो है दूसरे दल में पहुँच जाते हैं, और जैसे वहाँ पर वो दल कमज़ोर पड़ता है तो दूसरे दल के हाथ पकड़ लेते हैं। तो इसमें कोई किसी का भी नहीं है। कहते हैं जिसके पास सत्ता है वही सबका जो है फादर है। परंतु हम जानते हैं कि शायद ही ऐसे मानव समूह समाज में जो राजनीति से बचे हुए हों, शायद ही ऐसे व्यक्ति हो जो राजनीति के खेल को उलझाने या प्रभावों को न जानते हों। कहते हैं व्यवहारवादी राजनीति के कई सकारात्मक पक्ष भी हो सकते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं जो अच्छा करता है तो उसको हम सकारात्मक रूप में ही ले सकते हैं। आज के कार्य प्रणाली युग में इसके अनेक उदाहरण देखने को आपको मिल सकता है, जैसे अदृश्यता निवारण, भूमि सुधार, बंधुआ मजदूरों की मुक्ति, मानव श्रम के जो है विक्रय पर प्रतिबंध, बेकार जो है रोकना, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले कार्यक्रम, अन्य पिछड़ी जातियों का जो है सशक्तिकरण आदि। तो ये सारे के सारे अगर आपने देखा होगा तो ये उन रूल रेगुलेशन के नाम है जो राजनीतिक नेताओं द्वारा बनाई गई थी, जिसमें जो है आम गरीबों को जो है शोषण को विरुद्ध ये सारे रूल रेगुलेशन बनाए गए थे। लेकिन कहा जाए तो ये सिर्फ एक रूल रेगुलेशन भी बनाए गए थे, लेकिन आज भी अगर देखोगे तो बंधुआ मजदूरों की संख्या आज भी उतना ही है जितना पहले थी। कहते हैं मानव श्रम की देखोगे तो मानव श्रम की जो है बेशक कार्य बढ़ गए हैं, लेकिन उनको सही समय पर वेतन नहीं मिलता है। कहते हैं न्यूनतम मजदूरी की निर्धारण बेशक सरकार ने कर दिया है, लेकिन आज भी जो है व्यक्ति जो है न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण से भी नीचे जो है पगार प्राप्त करते हैं। तो ये सारे रूल रेगुलेशन सरकार के द्वारा ही बनाई गई थी, जिसमें जो है आम लोगों के संरक्षण करने की वचनबद्धता दी गई थी। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो ये बातें सिर्फ एक मिथ्या ही सिद्ध हुई है। वास्तविकता में देखा जाए तो आज हर क्षेत्र में आम गरीबों का शोषण हो रहा है, और इसमें अगर पुलिस पे आप जाओगे भी तो इसका कोई रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर पुलिस के पास जाओगे रिपोर्ट बेशक लिख लेंगे आपके ज़बरदस्ती कहने पर, लेकिन इसमें कोई रिएक्शन नहीं लिया जाएगा। वो दूसरे पार्टी से पैसा लेके ये जो है बातों को तहस नहस करके रख देती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि सरकार की तरफ हर रूल रेगुलेशन बनाई गई है, लेकिन इसको सख्ती से रूल रेगुलेशन को लागू नहीं किया जाता है। कहते हैं जो बड़ा है वही सदैव महान होता है। तो यही बात पे यहाँ पर चलता है सभी बातें। कहते हैं राजनीति समाज तथा संस्थाओं में होने वाली वास्तविक घटनाओं की प्रक्रिया से ये सारी बातें संबंधित है, जिसे राजनीति विज्ञान एक क्रमबद्ध तरीके से समझने का सदैव प्रयास किया जा सकता है। The next topic is scope of political science. Here we shall learn about the scope of political science is term of role of the state, function and government and the relationship with the citizen. The next topic is the role of the state. The term state is a modern sense was the first user Machiavelli is a 1469 to 1527. The Italians is the statesman, and their study of state has since remained the focus point to the political scientist. Machiavelli is the most important scientist of the political science. The state consists of four elements here. These are the peoples, the theory of the which is the leaves, the government to the rule and regulate the lives of the peoples, and sovereignty is which is the impulse, the unrestricted authority to take a decision and manage its own affair. You will be read there the details about these four elements in the second lessons, and the lesson second is the most important for you. The role and the nature of the state has been interpreted differently. The modern Western liberals and thinkings about which you will be study more in the fourth lessons. Across there is the commercially is the crisis. The revolution is the Western Europe in the 16th century and become a permanent with the industrial revolution in the 18th century. This revolution is both in to be focused on new economical is a system is called to the capitalism.
The capitalism is here mean to the evolution of growth into the focal of new economics. The here is the most important fact. The market is a place where a good and service are sold and both. It is a operate on the basis of demand and supply. There is a operate here a demand and supply. Many people regard it as a self-regulating, self-correcting place. Is a provided there is a no interference by the state. Competition is the chief hallmark of market. Competition is generally is a chief hallmark of the market. The capitalism and market are considered two sides of the same coins. There, capitalism and market are considered here two sides of here a same coin. The social group is a consist of the traders, is a merchant and businessman, and later there is the industrialist, is a, also known as the bourgeois. Was their major is a beneficiary of this system. The laborers emphasize that the consent of people is the true basis of the state. Earlier laborers think not also considered the state as a necessary evil and am the evil but is necessary for the purpose of protecting the individual from the external and internal enemies. According to the view that government is the best which is the governor the least. In others words, the state should be a policy state and hence the limited one. It should be also be limited in the different sense. As a John Locke, the of famous English liberal philosopher of the 17th centuries. The sad to be there is a protest that individually nature right to be life, liberty and property. Here is a one fact: the right of claim by on individually on of the state. Naturally, right are those right with the which on the individually is the supposed to has been born. These are so to say the God give a right. More importantly, individually is supposed to have according them even before the state come into the extenses. The important implication the state sign the state has a no role in the creations and grantings of these rights. It cannot take away to the abreast to this right, and by contrast to Marcus is a view about which you will be studying more in the fourth lesson. Not to consider the state as a empirical institutions. It is said that is a throughout of centuries, the state has been to the tools in the hand of the have for exploiting and dominating there is a have nots. In the future classless society like the communist society, their state would be a with away the Gandhian view their state would be justified extensive by cutting off the true slaves of the people. It should be helped to the poorest and weakest one. It should be restored to him our hair, our control over his our hair over life and destiny. We welfare state. There is a welfare state here which is the slowly emerged during the 1930th century. Try to the promote the well-being of citizens, especially the poor, the needy of the unemployed and the as it is now to generally agree that is a welfare state exit or promote commons good. So the function of the state have an increasing is a manifold. Here is one fact too. The state is an act of traces of there is a people mean that should be held people as a power and trust for a welfare of the people. It should not be considered people as a helpless subjected but as the co-rulers in a governments. The power refer to the ability of one person affecting the attitude or action to the another. There is the most important here. Power refer to be ability one person affecting to attitude to action to another. I have power over you if I can make you do what you would be not have done otherwise. There is important here power over you if I can make you do what you would be not we have it done to otherwise. But power is not a way exercisely openly. It is a can be exercised in a unseen way as the controlling the agenda. There is a controlling of agenda. However, power can be best exercised
when I can convince you about what is good or bad for you. And to that extent, my power over you would be a complete, and this dominance would be a way go to the unchanged. By a power of government, we think of the different separate of government. We think of ministers who have a is a departmentals under them for exercise for power over area of their dominance. There is a bureaucracy and the amorphous structure of governmental administration which has a power over us. It can control our lives and various way by making, administering and the implementing law. The here one thing is to be noted, power does not be lies only in the highly publicized and area of social life, like a government, administration, election, etc. It also exists in a small institutions like a family, etc. Many as a feminist are of the opinion that inside the private world of family men exercise power of dominance over women. There is the most important here. The private world of family is a man exercise power or dominance over women. Hence, it is a very aptly sad even their personal is a political. Another thing we notice is that there is a distinction is between to the legitimate and the illegitimate is the power. There can be power which is the considered right of proper. Well, the another may be a improper. There is a dacoist is a power over me is very real because if I do not accomplish with this wishes, I might lose my life is a limbs. But it is not to be proper power is a generally understood or contrast to be a power that is a government representatives is a policeman and judge exercise over me and proper power. The court's power is a legitimate power will there is a government as a legitimate and the power of constitutionally is authorities over me is called authority. Authority is a contains the true idea of the power and legitimacy. Authority is that from a power which is the legitimate, it is a power plus of legitimacy. Here's the most important. अगर देखा जाए हम अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें यही बात स्पष्ट रूप से आती है कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कहाँ है, किस किस क्षेत्रों में जो है राजनीति विज्ञान अपना दबदबा बना रखा है। कहते हैं यहाँ हम राज्य की भूमिका, सरकार की कार्य प्रणाली तथा जनता के साथ इसके संबंधों के राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो यही आती है कि राज्य की क्या भूमिका हो सकती है। तो हम यहाँ पर जो है सभी की भूमिका के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कहते हैं राज्य शब्द का पहली बार आधुनिक संदर्भ में जो है प्रयोग इटली के राजनीतिक मैकियावेली ने किया था, जो कि कहते हैं 1469 से लेके यानी 1469 टू 1527 तक जो किया था। उस समय से हर राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते समय मुख्य रूप से राज्य का ही अध्ययन करता है। यानी जब से इन्होंने जो है मैकियावेली ने अपना अध्ययन किया उस समय से लेकर जितने भी राजनीतिज्ञ हुए सब के सब जो है राज्य के ऊपर ही अपना अध्ययन फोकस किया। इन्होंने बताया था कि राज्य के प्रमुख 4 तत्व होते हैं। एक तो जनता होती है, दूसरा भूभाग जहाँ जनता निवास करती है, तीसरा जो होती है सरकार जो जनता के लिए कायदे कानून बनाती है, और चौथा देखा जाए संप्रभुता जिसके अंतर्गत निर्माण या मामलों को व्यवस्थित करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अब इन चारों तत्व के बारे में विस्तार से जो है आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहाँ यही आती है कि राज्य के आधार तथा भूमिका के बारे में विभिन्न धारणाएं यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। कहते हैं आधुनिक पश्चिमी उदारवादी विचारधारा ने, जिसके बारे में हम जो है चौथे चैप्टर में अध्ययन भी करेंगे, 16वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में वर्णित क्रांति का जो है बढ़ावा दिया गया और 18वीं शताब्दी में यह औद्योगिक क्रांति के रूप में प्रसिद्ध भी हो गई। इन क्रांति ने एक नई आर्थिक व्यवस्था को जन्म दिया जिसे हम पूंजीवादी का नाम से जानते हैं। कहते हैं पूंजीवाद ने अपना जो है मुख्य विचारधारा स्टार्ट कर दिया। पूंजीवादी पहले कहीं भी नहीं थी, लेकिन बाद में जो है पूंजीवादी के रूप में ही लोगों ने अपने आप को विकास कर लिया। तो पूंजीवादी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं अगर देखा जाए तो एक फैक्ट यहाँ पर आया है, कहते हैं वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने तथा बेचने वाले स्थान को बाजार कहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है।
और कहा जाए यह मांग और पूर्ति के आधार पर चलाया भी जाता है। तो इसमें ज़रूरी बात सही है कि जितना मांग होगी वैसे ही चलेगा ये। अनेकों लोगों का मानना है कि अगर राज्य का हस्तक्षेप न हो तो यह जो है स्वयं नियामक यानी स्वयं सुधारक वाला स्थान होगा और प्रतिस्पर्धा इसका जो है मुख्य बिंदु हो जाएगी। यानी पूंजीवाद और बाजार को एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में देखा जा सकता है। ऐसे सामाजिक समूह के अंतर्गत व्यापारी, व्यवसायी तथा सौदागर सभी आते हैं। यानी अगर देखा जाए तो इसमें के अंतर्गत जो है व्यापारी, व्यवसायी और सौदागर ही आते हैं और फिर भी उद्योगपति भी आते हैं जिन्हें बुजुर्गा वर्ग भी कहा जाता है, जो इस व्यवसाय के मुख्य लाभयोगी भी होते हैं। उदारवादियों का मानना है कि जनता की राय लेना राज्य का मुख्य आधार माना जाता है। आरंभिक उदारवादी विचारकों का कहना है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है और एक बुराई, परंतु ये जो आवश्यक भी है ताकि व्यक्तियों को बाहरी और आंतरिक शत्रुओं से बचाया भी जा सकता है। यानी बुराई होने के बावजूद भी जो है इसमें रक्षा की भावना बनी रहती है। कहते हैं इस मत के अनुसार एक अच्छी सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है। दूसरे शब्दों में राज्य को एक पुलिस राज्य होना चाहिए, परंतु सीमित होना चाहिए। यह एक दूसरे अर्थ में अगर सीमित होना ही चाहिए, जैसे कि 17वीं शताब्दी में मशहूर अंग्रेजी उदारवादी दार्शनिक जॉन कॉल्क ने कहा कि राज्य को केवल व्यक्तियों की प्राकृतिक अधिकार जैसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। तो यही जो है मेन आधार बनाया गया था। एक फैक्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर बात आती है कि प्राकृतिक अधिकार वो अधिकार हैं जो व्यक्तियों के जन्म के साथ ही प्राप्त होती है। तो प्राकृतिक आधार के रूप में इसको देखा भी जा सकता है, इसलिए उन्हें ईश्वर के द्वारा प्रदान किए गए अधिकार कहते हैं। यानी जो परमात्मा ने जिसको जहाँ जन्म दिया है उसको उसी प्रकार के जो है संपत्ति और अधिकार मिल जाता है। राज्य की उत्पत्ति से पहले व्यक्ति ने इन्हें प्राप्त कर लिया था, क्योंकि राज्य इन अधिकारों को नहीं दिया है, इसलिए वे राज्य इन अधिकारों को छीन भी नहीं सकता है। तो सच्चाई है कि जो किसी को कुछ दे नहीं सकता तो छीनने का अधिकार भी उसके पास नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात यही आता है कि व्यक्तियों का जो अधिकार है, जो संपत्ति उसको मिलती है, जो अधिकार दिया जाता है वो जन्मजात ही होती है। तो इसमें राज्य का इसमें कोई तरह का जो है हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हम जो आगे मार्क्सवादी के जो दृष्टिकोण होंगे उसके हम आगे चैप्टरों में करेंगे, तो वो चैप्टर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं राज्य एक निष्पक्ष संस्था नहीं है, यानी राज्य देखा जाए तो एक तरफा नहीं है, निष्पक्ष नहीं है। इस दृष्टिकोण वाले लोगों का मानना है कि सदियों से राज्य धनी लोगों के हाथों में एक हथियार है जिसे गरीबों का शोषण किया जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो सच्चाई है और इस बात को जो है हम भी मानते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये जितने भी राजनीतिक नेता होते हैं सब के सब अमीर दल से ही होते हैं, अमीर घराने से ही होते हैं। गरीब से कोई भी जनता खड़ी नहीं होती है। कहते हैं गरीब का शोषण करने से ही ये अमीर बन जाते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई दो राय नहीं है। कहते हैं बड़े बड़े लोग जो होते हैं सत्ता पे आसीन होते हैं और आम गरीबों पे उनका जो है दायित्व और जो है अपना प्रभुता बना रखे होते हैं। दूसरी ओर गांधीवादी दृष्टिकोण का मानना है कि स्टॉलशिप की व्यवस्था द्वारा लोगों को अस्तित्व को बचाया जा सकता है और इसके द्वारा जो है निर्धनतापूर्ण पुरुष और स्त्रियों को सहायता भी प्राप्त होनी चाहिए। देखिए गांधीवाद विचारधारा तो अपनी जगह पर सही थी, लेकिन गांधीवाद विचारधारा को लागू नहीं किया गया। 1930 के दशक में लोक कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ जो अपने नागरिकों को कल्याण, विशेषकर गरीब, बेरोजगार तथा बूढ़े लोगों के हित का जो है अधिक ध्यान रखता है। यह अब प्रायः माना जा रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य आम लोगों के कल्याण को बढ़ावा भी देता है, इसलिए राज्य का कार्य कई गुना आज बढ़ गया है। यानी राज्य का देखा जाए तो दायित्व भी समय के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। एक फैक्ट के अनुसार कहते हैं राज्य जनता के ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। यानी राज्य जो होता है एक तरह से देखा जाए तो एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है, अर्थात इसके पास जनता की शक्ति एक ट्रस्ट के रूप में होता है, यानी जनता के कल्याण के लिए होना चाहिए। यानी जो भी कार्य कहते हैं राजनीतिक नेता करना चाहते हैं वो सब जनता के कल्याण में होना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, एक बार जब हम सत्ता पे आसीन हो जाएं तो जनता तो पता नहीं कहाँ चला गया ये वो कभी सोचते ही नहीं है। सिर्फ अपनी भलाई हो चाहता है उनमें कि उनका कैसे भलाई हो जाए, अगले जगह जो स्थान पे कैसे उनका विजय होगा इसके सोच में वो लगे रहते हैं। जनता की कभी सोचती नहीं है। अगर जनता का सोचते तो आज जो है देश का ये हाल नहीं हो रहा होता। इसे जनता की शक्ति वहीन विषय नहीं समझना चाहिए, बल्कि उन्हें शासन में सह शासक समझना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई नहीं मानते हैं कि शक्तिहीन ही मानते हैं, इनको जो है सह शासक नहीं मानते हैं। अगर राजनीतिक नेता उनको सह शासक मान लेते तो आज इनकी दुर्दशा कुछ इस तरह नहीं होती।
शक्ति का तात्पर्य एक व्यक्ति की उस क्षमता से है जो दूसरे व्यक्ति की क्रियाओं एवं आचार व्यवहारों को सदैव प्रभावित करती है। मैं आपके ऊपर जो है अधित्व रखता हूँ यदि मैं आपसे वह कार्य कराने में सफल हूँ जो आप अपने आप नहीं करते हैं। परंतु शक्ति का प्रयोग हमेशा ही खुलेआम नहीं होता है। इसका प्रयोग गुप्त रूप से भी किया जा सकता है, जैसे कि कार्यक्रम पर नियंत्रण। यद्यपि शक्ति का सबसे अच्छा प्रयोग तब माना जाएगा जब मैं आपको मनवा सकूं और आपके लिए क्या अच्छा तथा क्या बुरा है इस बारे में आप सोच सको। तो ये बहुत ज़रूरी बात है, तभी शक्ति का प्रयोग होता है। शक्ति का प्रयोग का मतलब दोस्तों यही होता है कि आपके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है आप उसको परख सको, यही सबकी सब अच्छाई होती है। इस तरह ये मेरा आप पर पुण्य अध्यापित ऐसे प्रभुता को कभी चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी अगर आपको समझ बूझ है तो चुनौती नहीं दी जा सकती। आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सी जनता जो है लालचों के जो है एक पुटली में आ जाते हैं, जहाँ पर हर एक जो है राजनीतिक नेता उनको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। लालच की जो होती है वो लालच की जो है पिटारा खोलते रहते हैं और उसी लालच के पिटारा में वो लोग फंसते चले जाते हैं। वो कभी विवेक से नहीं सोचते हैं कि इसका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पे क्या होगा। सरकार की शक्तियों के बारे में अध्ययन करते समय हम सरकार के विपक्ष पक्षों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम मंत्रियों की बात करते हैं जिसके पास अपने क्षेत्र संबंधी विभाग तथा उससे संबंधित शक्तियां होती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको पता है कि बहुत से मंत्री होते हैं, उनके विभाग होते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो कहते हैं ये अपने विभाग में कभी भी नहीं जाते हैं। अगर कभी चले जाते हैं तो एक टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आ जाता है कि मंत्री जो थे अपने विभाग में जाके वहाँ पर जो है कार्य में कार्यरत व्यक्तियों के सुध ले लिया। अब ये इसको ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वो तो उनका अधिकार था, उनको दायित्व था कि अपने विभाग में जाके अपने कार्यभार को सही सुचारू से चलाएं। तो इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ देने की क्या ज़रूरत था। और ये उनका कर्तव्य था कि 100 साल के बाद वो वहाँ पर जा रहे हैं, अपने जो है कार्यालय में जाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी विडंबना हो जाती है ना। तो यही बात यहाँ पर बताने की कोशिश किया गया है कि जो हम मंत्रियों की बात करते हैं जिसके पास अपने क्षेत्र संबंधी विभाग होते हैं, उससे संबंधित शक्तियां भी होती है। जनता के ऊपर शासन करने के लिए नौकरशाही तथा विशाल सरकारी प्रशासन भी व्यवस्था होता है। सरकार विभिन्न प्रकार के कानूनों का प्रावधान प्रशासन द्वारा उन्हें हमारे जीवन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सदैव करती है। तो उनका तो नियंत्रण हम पे होती है, लेकिन हमारा नियंत्रण उन पे नहीं होता है, क्योंकि वो कोई ना कोई जो है अपनी रूप रंग बदल लेते हैं। यह एक बात ध्यान देने योग्य है कि शक्ति का अस्तित्व केवल उत्तर स्तरीय समाजी जीवन से संबंधित लोगों जैसे सरकार, प्रशासन अथवा चुनावों से है आदि में नहीं दिखाई देती है, बल्कि इसे छोटे स्तर पर परिवार जैसे इकाइयों से भी देखा जा सकता है। नारीवादी आंदोलनकारी का मानना है कि जब पुरुष व्यक्तित्व जीवन के महिलाओं के ऊपर शक्ति अथवा प्रभुता का सदैव प्रयोग करता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। पुरुष जो है अपनी व्यक्तिगत जीवन की महिलाओं के ऊपर जो है हमेशा प्रभुता का प्रयोग करते ही है। अंततः ठीक ही कहा गया है कि व्यक्तिगत भी राजनीतिक हो सकती है। कहते हैं एक अन्य विचारणीय बात यह है कि वैध अवैध शक्ति में भी विभिन्नता देखा गया है। तो वैध शक्ति जो सरकार के रिगार्डिंग रूल कानून के अनुसार होता है, अवैध शक्ति जो इसके विपरीत होता है। कुछ ऐसी ही शक्ति होती जिसे न्याय संगत अथवा उचित कहा जाता है, परंतु कुछ शक्ति ऐसी भी होती जिसे न्याय संगत भी कहते हैं अगर एक डकैत की शक्ति जिसने मुझे अपने कब्जे में कर लिया है वास्तविक है, क्योंकि अगर मैं उसकी इच्छाओं के विरुद्ध जाऊंगा तो वो मुझे मार भी सकता है, ऐसा शक्ति को जो है न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत सरकारी प्रतिनिधित्व, पुलिसकर्मी या न्यायाधीशों द्वारा प्रयोग की गई शक्ति को उचित अथवा एवं न्याय संगत भी माना जाता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, क्योंकि वो पुलिस है, अधिकारी हैं, ठीक है, न्यायाधीश हैं, वो तो सारे के सारे फैसले जो होते हैं अपने विचारधाराओं से करते हैं, तो उसको न्याय संगत ही माना जाएगा। ठीक है, डकैत की शक्ति अवैध थी जबकि सरकार की शक्ति वैध होती है। सर्वैधानिक सत्ताधारी द्वारा प्रयोग की गई शक्ति का सत्ता ही कहते हैं। आज जो अगर देखा जाए तो जो अवैध कार्य होते हैं वो वैध रूप से ही की जाती है, जो गलत होती है उसको न्याय संगत ही किया जाता है। तभी तो कहते हैं इन पे कोई कदम नहीं उठाई जाती है। सत्ता में शक्ति का वैधता दोनों ही नीति होती है, इसलिए सत्ता शक्ति का एक रूप है जो न्याय संगत तथा उचित भी है। कहते हैं यह शक्ति के साथ साथ वैध भी मानी जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है। Our next topic is the citizens and government. The government is the most important instrument of the state through which the latter realize it is an object. Through the three
organs here, legislatures and executives, and the judiciary, and it's a make to law and the rules, implement them to maintenance place of order there is a country and resolve to the classes of interest. It is also try to the ensure territory integrity of unit of country. Modern democratic governments perform many other functions for the development and welfare of citizens and society as a whole. This especially so is the developing countries like our. And the relationship between the citizen and government is a reciprocal. The citizens are member of the state. The state recognizes content rightly of the citizens and turn expect content of duty from them. So far as the right of the citizens are concerned, they can be divided into three: civil, political, and social. The civil rights are those rights which are necessary for the freedoms and liberty of individually, and that include a right to be life and professional liberties, right to a freedom to speech, expression and the thought, right to own property, right to enter into the contract, right to be equality before the law and the equal protection by the law. Equality before law means absence of special privilege of equal protection of law in place of equal should be treated of equally. The political right include the right to be vote and the right to be contest election. Social right include the right to be some degrees of economic welfare and security of the right to be live the life of civilized began to according to the standard prevalence in the society. There is a more important here. It is a primary duty of the citizen to the pay of taxes to government. There is the most important here, the primary duty for tax play, and there should be operate which is the government can avoid it by there is a law and the rules should be held to the preventing disease by the immunization and the keeping the hood is the clean. There should be have a small family to help to be a government check the population growth. There should be a preserve to the public's property, help the catching and punishing to anti-social, anti-nation element. The further citizen of different caste, religion, language, and reasons should be solved. There is a problem by the understanding and agreement, and not by the violent means. In this way, a lot of resource, energy, and time of the government can be saved the constructive purpose. हमारा दूसरा पॉइंट जो है नागरिक और सरकार। देखिए, नागरिक और सरकार क्या है। कहते हैं सरकार जो है राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, जिसके द्वारा राज्य अपने उद्देश्य की पूर्ति भी करता है। अपने तीनों अंग अर्थात व्यवसाय, स्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी ये तीनों जो व्यवस्था होता है, व्यवस्थापालिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य से सरकार नियमों और कानूनों का निर्माण करता है और विवादों को जो है निपटारा और शांति में व्यवस्था बनाए रखने का भी कार्य इन्हीं तीनों ढंग से किया जाता है। यह देश की एकता और अखंडता को भी सुनिश्चित करने का सदैव प्रयास किया जाता है। देखा जाए आधुनिक लोकतंत्र सरकार नागरिक और समाज कल्याण का विकास के लिए अनेकों अन्य कार्य भी करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार के द्वारा बहुत से कार्य के जो है शुभ आरंभ भी किया जाता है। ऐसा प्रगति विकासशील देशों में अधिक पाई जाती है, जैसे कि भारत में एक विकासशील देश है। नागरिक एवं सरकार के बीच संबंध पारंपरिक ही यहाँ पर देखने को मिला है। नागरिक राज्य सदस्य होते हैं और राज्य नागरिकों के अधिकारों को मान्यता भी देता है और इसके बदले नागरिकों को कुछ कर्तव्य की अपेक्षा भी किया जाता है। जहाँ तक नागरिकों के अधिकारों का प्रश्न है, ये तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है नागरिक, एक है राजनीतिक, एक है एवं सामाजिक। कहते हैं अगर देखा जाए नागरिक तो वो अधिकार हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक होता है, यानी नागरिक अधिकार वो अधिकार है जो स्वतंत्रता के लिए आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत जीवन का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार, अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, समझौता करने का अधिकार, कानून के सामने समानता का अधिकार तथा कानून द्वारा सामान्य सुरक्षा आदि शामिल होता है। तो ये जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी इंपॉर्टेंट इसके अंतर्गत आता है। बात करें कानून के समक्ष समानता का अर्थ कि सभी को सामान्य समझना तथा विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। कानून की नज़र में सभी व्यक्ति सामान्य होता है। राजनीतिक अधिकारों का अभिप्राय मत देने का अधिकार तथा चुनाव लड़ने का अधिकार से होता है। सामाजिक अधिकार के अंतर्गत जो है आर्थिक कल्याण, सुरक्षा तथा समाज में उपस्थित सम्मान की जिंदगी जीने आदि से अंतर्गत आता है।
तो चलिए कोई भी बात हो, ये सब बात जो है एक दूसरे के विपरीत ही बताई गई है। बात अगर हम करें कानून के किसी व्यक्ति को सामान्य अधिकार, तो कहते हैं कानून के समय सारे व्यक्ति सामान्य अधिकार कहाँ मिला हुआ है। कहते हैं बड़े बड़े लोगों के लिए जो है वहाँ पर कुर्सी खसका दी जाती है और आम गरीबों के लिए लाठी बरसाई जाती है। तो ये कहाँ से जो है कानून की नज़र में सभी व्यक्ति सामान्य हैं। बात करते हैं सुरक्षा, कल्याण, सुरक्षा और समाज की, तो कहते हैं आए दिन जो है यहाँ पर जो कई तरह के जो है गतिविधियाँ होती रहती है जो देश विरोध के रूप में होती है। तो ये गतिविधियों में जो है मैक्सिमम सरकार के व्यक्ति ही सम्मिलित होते हैं। तो ये सारी बातें मिथ्या रहती है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा ये चैप्टर है, हमें इन्हीं बातों को आगे लेके चलना पड़ेगा। उसके पश्चात नागरिक की प्राथमिक कर्तव्य है कि वह सरकार को कर दे, क्योंकि कर देना ही सरकार की आमदनी का रास्ता होता है। आपको क्या लगता है कि सरकार जितनी भी फ्री करती है वो अपने जेब से पैसा देती है? नहीं, क्योंकि आपका जो कर्तव्य है कर देना, उन्हीं कर को बढ़ा चढ़ा के लेने से वो जो है आपकी फ्री की वस्तुओं को सेवा पानी करती हैं। प्रत्येक नागरिक को विधि या नियम का पालन करके जो है सरकार का सहयोग करना चाहिए, प्रतिरक्षण में मदद करना चाहिए ताकि अध्यस्त बीमारियों को रोका जा सके। जनसंख्या विकास को रोकने के लिए छोटा परिवार की परंपरा अपनानी चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति रक्षा भी करनी चाहिए और असामाजिक तत्व राष्ट्र के दुश्मनों को जो है पकड़वाने, सजा दिलवाने में मदद भी करना चाहिए। कहते हैं अगर आप असामाजिक तत्वों को पकड़ के भी जेल में भी डलवा दो तो अगले दिन जो है वो सरकार के नेताओं के कारण अगले दिन बाहर फिर से वही गतिविधियाँ करने लग जाती हैं। अलग अलग जाति, धर्म, भाषा एवं क्षेत्र के नागरिकों को अपनी अपनी समस्याओं को समझौता के द्वारा समाधान भी करने की पूरी आज़ादी है। कहते हिंसा द्वारा नहीं, कहते अहिंसा के द्वारा। ऐसा होने पर सरकार अपने साधनों एवं ऊर्जा को बचाकर सकारात्मक कार्य में सदैव लगा सकती है। Our next topic is liberties. The term liberty is derived from the Latin word labor, means of free. Thus, liberties mean to the freedom. The freedom is the paramount of important for the development of individual as a personality. The historically speaking, the term liberty was initially defined as absence of all the restrictions on the individual. This is known as the negative concept of liberties here. The earlier liberalism is compounded is a negative liberty. John Thomas Mills, there a 19th century English political philosopher, described the restraints as an evil. Mill was especially worried about their restrictions common from the state and society. However, since the individual is a live together in a society, complete absence of restrictions would be neither a possible nor a desirable. Further, different things are between to the self regarding as a other regarding action is not to be a way possible. And here it is been to very apt to the sad that your liberties to swings your arms, ending here where maybe nose began. For liberty to be enjoyed by everyone, it should be a responsible or stance. This is a concept of positive liberties. The concept of further means freedom to be a master of oneself. Horace J. Luxis support this concept, and freedom are opportunities which the history has shown to be stimulated to their development of personality. The freedom of many required stands low on the freedom of a some. The latter liberal supporting to the positive liberty. हमारा जो अगला टॉपिक है वह है स्वतंत्रता। देखिए स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द लिबर से शब्द से हुआ है, इसे इसको लिबर्टी कहा जाता है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास में स्वतंत्रता का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। प्राचीन समय में राजनीतिक जो है चिंतकों का एक दल मानता था कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता का अर्थ है किसी प्रकार की बाधा न होना। इसे स्वतंत्रता का जो है नकारात्मक अर्थ कहा गया है। इस नकारात्मक चिंतन वाले लोगों का मानना है कि व्यक्तियों के कार्य करने के लिए पुण्य जो है स्वतंत्र होना भी चाहिए। जॉन स्टुअर्ट मिल, जो एक ब्रिटिश राजनीतिक चिंतक थे, का मानना है कि बाधा का एक बुराई है। ठीक है, बाधा एक बुराई है। मिल राज का जो समाज की तरफ से आने वाली बाधाओं को विशेष
चिंता किया करते थे। मनुष्य समाज में एक साथ रहता है, इसलिए बाधाओं का बिल्कुल ही नहीं होना संभव है। यानी अगर आप एक साथ रहते हो तो बाधाएं होना कतई असंभव है, तथा रेखा गणित में भी होना नहीं है। सकारात्मक चिंतक का दल का मानना है कि व्यक्ति को वही तक स्वतंत्र होना चाहिए जहां तक उसकी स्वतंत्रता से दूसरे की स्वतंत्रता बाधित नहीं होती है। व्यक्ति को सकारात्मक स्वतंत्रता की एक कानूनी सीमा रेखा के बीच ही स्वतंत्रता होनी चाहिए। कुछ स्वतंत्रता कानूनी रूप से प्रतिबंधित भी होता है, और इस धारणा का और आगे अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति अपने आप में मालिक है, और इस धारणा को हेरोडस जेल्स्की ने समर्थन भी किया था। स्वतंत्रता वह अवसर है जिसके बिना व्यक्तित्व का विकास असंभव है। इतिहास इसका गवाह है, और कुछ व्यक्तियों की स्वतंत्रता को कानून द्वारा सीमित करना भी पड़ता है ताकि अधिक लोगों को स्वतंत्रता का लाभ मिल सके। द नेक्स्ट टॉपिक इज safeguards of liberty. Safeguards the liberty is the most important here. Declaration of right of the individual in the Constitution is considered as the important safeguard of liberties. This way of government can be prevented from the encroaching upon to the freedom of the people. Imperial judiciary is rightly called to the is a watchdog of liberty, and without is the liberty of their individual would be meaningless. And decentralizations of power is another important safety guard of liberty. The history is the witness to the fact of concentration of power has a very often lead to the despotism. The separation of power is the executive and legislative and judiciary as being to separate is the great olives of liberty. Is a must concern a power should be a check on power. The rule of law or equality is the eyes of the law is also an important safety guard of liberty. This is the blockwork is against discrimination based on the caste, class, color and creed, etc. There is against of discrimination of bulwark. A large measure of the social justice is a diffusion of social and economic privilege is a prerequisite for the liberty. If the privilege of become to the prerogatives of select few, then effective liberty would be denied to be a vast majority. A bell or canif parties is also indispensable for the preservation of liberty. All these institutional safety guard are is indicated of preserve the liberty of citizens and themselves do not post the proud and spirit of preserve its. People should be aware beyond their tools to be ensure that the liberty is not encouraged upon. The internal balance it is willingness it is been to the rightly set it's the price of liberty. उसके पश्चात हमारे समक्ष स्वतंत्रता की रक्षा कहते हैं। स्वतंत्रता की सुरक्षा किस प्रकार किया जा सकता है। संविधान में व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा को स्वतंत्रता का एक प्रमुख रक्षक माना गया है, और इसके द्वारा लोगों की स्वतंत्रता को सरकारी हस्तक्षेप से भी बचाया जाता है। यह कहना उचित ही है कि निष्पक्ष न्यायपालिका स्वतंत्रता की प्रहरी मानी जाती है। इसके बिना व्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थहीन ही माना जा सकता है। शक्ति का विकेंद्रीकरण भी स्वतंत्रता की एक प्रमुख सुरक्षा कवच के रूप में देखा जा सकता है। इतिहास में से प्रमाण मिलते भी हैं कि शक्ति केंद्रीकृत निरंकुशता को जन्म सदैव दिया है। कहते हैं अगर देखा जाए तो कार्यपालिका, व्यवस्थापालिका और न्यायपालिका बीच शक्ति का विभाजन भी स्वतंत्रता की रक्षा का प्रमुख साधन भी माना गया था। इसमें मॉन्टेस्क्यू ने भी कहा था कि शक्ति का नियंत्रण शक्ति द्वारा ही होना चाहिए, नहीं तो शक्ति का व्यर्थ ही रह जाती है। देखा जाए तो कानून के नियम तथा कानून की दृष्टि में समानता भी स्वतंत्रता की एक रक्षा करती है, और इन नियमों से जाति व वर्ग, धर्म एवं रंग के आधार पर भेदभाव समाप्त हो जाता है। सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समानता से स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है। यानी देखा जाए तो सामाजिक न्याय और सामाजिक आर्थिक समानता से स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है, लेकिन कुछ व्यक्तियों के विशेष अधिकारों को दुरुपयोग से बहुसंख्यक वर्ग की स्वतंत्रता की हानि भी हो जाती है। इसके अतिरिक्त सुसंगठित दलित व्यवस्था और जागरूक राजनीतिक दलों की व्यवस्था से स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है।
सभी सुरक्षा साधन बेअसर हो जाएंगे यदि नागरिक स्वयं स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जागरूक नहीं होंगे। सरकार कोई रूल रेगुलेशन बना के आपको सुरक्षा नहीं कर सकती है जब तक आप सुरक्षा के लिए हमेशा जो है सशक्त न रहो। इसलिए लोगों को हमेशा चौकस एवं चौकन रहना चाहिए ताकि कोई भी उसकी स्वतंत्रता का अतिक्रमण न कर सके। निरंतर सतर्कता ही स्वतंत्रता का मूल्य आधार माना जा सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है ख़त्म हो जाता है। आगे का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो अगर हो सके अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। अगर इसमें से दो बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वो ये है कि इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाना है, इसलिए जितना हो सके इसको शेयर भी करना है। और शेयर करने के लिए अब आपके पास जो है सबसे अच्छा साधन व्हाट्सअप स्टेटस से अच्छा कोई साधन हो भी नहीं सकता, ठीक है। और दूसरी बात ये भी था, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लो, नहीं तो आपको जो है दूसरे वीडियो का नोटिफिकेशन शायद प्राप्त ना भी हो, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब करके रख लेना, आपके हित में है। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, तुरंत सब्सक्राइब करके जो है इसको सेव करना। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।